उसे लगा सब ठीक हो गया। उसके पैर में घुघरू की मुझे लग रहा है उसके भाई की भी डेथ हो गई शायद, उसी की आत्मा वो थी शायद। अभी पता चलेगा। वही आदमी ना, हम्म, इसने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए अपने। അത് കനിയല്ല. It's a man. अच्छा वो कोई और मतलब किसी और की आत्मा है वो? मुझे लगा उसके भाई की आत्मा। ഇവിടെ വേറെ ആരൊക്കെയാ താമസിക്കുന്നത്? I stay alone these days. उसका भाई तो लग रहा था वो। My dad built it. ഈ കുടുംബത്തിലോ വീട്ടിലോ അടുത്ത ശ്മശാനത്തിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നോ? ഇല്ല, കനിയുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം. वो तो उसका भाई लग रहा था। किसी और की आत्मा थी होगी वो। അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും? അവളുടെ ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. अच्छा ये तो लेके आया था उसकी हेयर क्लिप। तभी तो बोल रहा हूँ मैं। എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം What do you mean? ആഴത്തിലുള്ള വെറുപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളിലൊക്കെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഇതെല്ലാം അവരവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും. अच्छा कोई और हो सकता है, എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി किसी और की वजह से मरी हो। അയാൾ എന്നാ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. मतलब किसी പിന്നീട് അയാൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും. मतलब कली की आत्मा नहीं हो किसी और It की। doesn't make sense. Who is he? എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? എന്തിനയാൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എത്തണം. अब वही जाएंगे कनी के घर। मुझे लग रहा है किसी ने मारा ही होगा उसे। किसी आत्मा ने मारा होगा। उसकी अलमारी चेक करेंगे अब शायद। मेरे कृष्ण അതിവിടെ കാണുന്നില്ല. इसके कुंकुर से घर में बसते हैं। അതാരാണോ എടുത്തത്? ഇല്ല. She was very reserved. അത് തെറ്റാണെങ്കിലോ? പക്ഷേ അയാൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ കാര്യമായൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും. इसका रिलेशनशिप था ना शायद, इस वजह से। ജോലിക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. उससे पूछेंगे हम नौकरानी से। ാണോ? ഞാൻ ആ എരുമ്പയൊന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. തൊഴുത്താകെ നാശമായിട്ട് കിടക്കുക. കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ, ബാക്കി ഇല്ല. കയറുന്നില്ല എൽസമ്മ. ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. നമ്മുടെ കനിയുമായിട്ട് എൽസമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിരിക്കുന്ന കാണാം. അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നോ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും സ്ഥിരമായിട്ട് അറിവിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ല സാറേ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്.
ആ കുടുംബത്തിന് എന്തോ ശാപമുണ്ട് സാറേ. ആകെ ഉണ്ട്. കനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ. अपना तरीका वही, इससे भी आता ना कुछ जादू मंत्र. फिर से अपने घर में आ रहा है. कहीं और रहना चाहिए था इसे कुछ दिनों तक. नहीं ऐसा तो है नहीं कि पैसे की दिक्कत हो. नहीं जा तो रहा है वो. देखो सामान लेके आ रही है उसका. കയറുന്നില്ലേ സാറ്? ഇല്ല, കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോക്കോ. ഒക്കെ ലോക്ക് ചെയ്തേക്കും. ചാവി താൻ കൈ വെച്ചോ. ആരെയും അകത്തേക്ക് വിടണ്ട. ठीक है, उसने चला गया. फालतू में उस घर में रुका हुआ है. कहीं आत्मा इसका पीछा ना करे. कहीं से न करे परेशानी. ये भी गया था ना उस घर में. हाँ, वही कुआं है. शायद वही कुआं. फिर से होने लगी ऐसे महसूस कुछ. ഞാൻ പുറത്താ. നീ ഓക്കെ അല്ലേ? I'm fine, ma. എപ്പോഴാ മോനെ? ബിസിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. അല്ലല്ല, ബിസി ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ. How is she? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഷീസ് ഫൈൻ. നീ ആളെ വിളിച്ചില്ലേ? ഇല്ല. നിന്നെ പറ്റി ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ ചോദിച്ചു. Please let dad know as well. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം. ഓക്കെ മോനെ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. See you, ma. ये नहीं कर रही मतलब. उसी की फोटो देखने में लगा. पता नहीं परेशान उसे ये कर रही थी क्या, फिर वो दूसरी आत्मा कर रही I'm थी. sorry. मतलब ये नहीं कर रही थी शायद ना. वरना अपने भाई को क्यों मारती हो उन्हें? ऐसा तो पॉसिबल नहीं था. हाँ, यहाँ भी आ गई है वो आत्मा. അമ്മേ, इसकी मम्मी कर रही है ऐसा. അമ്മേ. वही भूत होगा. देखो यहाँ पे आगे शायद वो कोई अंदर आ गया ना. बिल्ली. पता नहीं बिल्ली ने किया है. डर गया, उसको सिल गई. अब हो
होगी इसकी हालत ख़राब। उसके घर में आ गए वो, देखो अभी तो कहीं जा भी नहीं सकता। मंदिर में चला गया, माचिस नहीं जल रही। हाँ वही भूत आ गया वहाँ यहाँ पे। घूमने की आवाज़ आ रही है। अब वो तो उस घर से चला गया है, अब इसको कर रहा ऑपरेशन। माचिस चली नहीं भयंकर, अच्छा चल गई। ओ बा दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ नहीं आ पा रहा शायद ना। देखो यहाँ नहीं आ रहा है। सही किया उसने, फटाफट वहाँ चला गया ना। कि फिर से तो नहीं आएगा। इसे कुछ पूजा वूजा नहीं आती होगी जिससे वो भूत भाग जाए। अपनी मम्मी को देखने चला आया था। इसके घर में इसकी मम्मी रहती बस ना। इसकी वाइफ, इसके बच्चे नहीं होंगे क्या? छुट्टी कर रहा था नमक से। नमक से क्या होता है? नमक से भागता होगा भूत शायद। उसकी माँ ठीक है देखो। अच्छा इसकी माँ को नहीं पहुँचा इसने नुकसान। इसके घर में और कोई क्यों नहीं होगा? शादी नहीं की इसने। तो जिंदा है। कितना बुरा हाल है उसका। जहाँ डांस सीखने जाते थे वहाँ पता करेंगे वो। വരാതെ ചോദിച്ചപ്പോ താല്പര്യം പോയിന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കുറെ നിർബന്ധിച്ചതാ, പക്ഷെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇവിടെ എല്ലാരും പെൺകുട്ടികളാ, എന്തു പറ്റി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ? കനി ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഇനി അതാണോ ഇല്ല, കോളേജ് തൊട്ടേ എനിക്ക് അറിയാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ വന്നു പോയതൊക്കെ. अपने दोस्त को भी बताया। ഞാനും കനിയും ബസ്സിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി. അവിടെ ഉണ്ടാവും. അന്ന് അതത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം അയാളത് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയായി. കനിയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. അയാൾ കുറച്ചുകാലം ഈ പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് നടന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? 7-8 महीने पहले की बात। ആളെ കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മെലിഞ്ഞിട്ടൊരാളാ, ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. देखो वही है, पतला था और बाल घुंघराले। तो कौन था वो? अब यहाँ पता करेंगे। इस दुकान पे करता था वो काम। ചേട്ടാ ഒന്ന് ചെറിയ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ ഷോപ്പിലെ ഒരു പയ്യൻ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ട് ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അഡ്രസ് ഇല്ല, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവൻ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു കാര്യം? പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാ. അവന് തോന്നിയ പണി എടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ
उसकी फोटो तो दिखा देता हूँ। പേപ്പറും മെഷീൻ നഷ്ടമായി. ഇടയ്ക്ക് കുറെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൂട്ടുന്ന കാണായിരുന്നു. പള്ളിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല. ഏത് പള്ളിയിലച്ഛൻ? നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിലച്ഛൻ. അയാൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? उसकी फोटो दिखा देता है नहीं, कैसे दिखने में था? हाँ फोटो उसके पास नहीं हुई ना। നോ ഐഡിയ. ये तो पता करना है। मन नहीं लग रहा, उस मतलब चर्च के फादर से पूछ सकते हो, उसी को मालूम होगा। ആ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഏജന്റ് വഴി സൗദി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എൽസമ്മയുടെ മകൻ മനു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാ. പിന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പള്ളി എനിക്കറിയാം. वो एल्सम के घर जा रहा है, ये चर्च जा रहा है फादर से बात करने के लिए। ഇത് ക്രിസ്തീയ വചനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്നുമല്ല. ബൈബിളിലെ കുടീരത്തെയും കീറി മുറിച്ച് ഏവരെയും സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തിക്കും. कहीं जादू वगैरह तो नहीं करता था वो, जादू टोना? अच्छा DS रे ദിവസം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ. फिल्म का नाम है ना। ഇതേതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അച്ഛന് ഫിലിപ്പിനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം? അവരീ പള്ളിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കയറിപ്പോവാൻ. അച്ഛാ, ഈ ഫിലിപ്പിൻ്റെ फोटो देखेंगे उसके। चाहिए इसके घर चला गया ना। ആ മോനായിരുന്നു. എന്താ മോനെ? ചേച്ചി എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം. നിങ്ങളുടെ മോൻ മനു സൗദിയിലല്ലേ? ആ പല സമയത്തും പല നമ്പറിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലൊന്നും കിട്ടില്ല. ആ ഏജന്റ് നമ്പർ ആയാലും മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. एजेंट से बात करेगा, उसका बेटा भी सऊदी में ആ जाता ना। അതാണ്ട് ഈ മോളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തത് അവനാണ്. अब ये भी देखेगा घर में फोटो। हाँ तो मतलब वो मनु है शायद, ऐसा लग रहा मुझे, हो सकता है। एल्विस एल्विस नहीं है वो। कौन हो गया? अच्छा ये आदमी है। मनु ये जानते हो कैसे? ये तो फिलिप अच्छासी का नाम है। ओ बैंक किसी का बेटा है वो, जैसे परेशान कर रहा है। मनु फिलिप एक ही है वो। अब देखिएगा, बताओ यार, इसका बेटा मर चुका है। शक हो रहा कुछ। क्या इसी औरत ने तो नहीं मारा अपने बेटे को? यहाँ क्या होगा? क्या उसकी डेड बॉडी तो नहीं है? क्या पता।
My God. उसी के बेटे मुझे की लग रहा था dead body कहीं जिस तरह से उसकी माँ ने ऐसे चौंकते हुए देखा ना, हाँ तो हो सकता है उसी ने मारा अपने बेटे को, या सकता है या फिर किसी बीमारी से मरा हो, क्या पता नहीं। झूठ बोली थी इससे वो। हाँ, कितना बुरा हाल है उसका, कहीं से भी ना मार दे। इसके नीचे क्या हुआ? इसी के पैर में घुंघरू है। वो घुंघरू पहन के मरा था क्या? इसने पहने हुए घुंघरू, तो ये परेशान कर रहा है उसे। ऐसा लग रहा था वो लड़की उससे डरा रही है, वो परेशान कर रही है। वो लग ही रहा था कहीं ये ना मार दे से, उसे सर पे मार के बेहोश कर दिया। उसे ध्यान देना चाहिए था ना इधर उधर, बिल्कुल आराम से वहाँ देख रहा था। पर उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? മനുഷ്യൻ പോലും സുരക്ഷിതനല്ല. ഏത് രക്ഷകനോടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലമാണ്. എന്ന നുണകളെല്ലാം വെളിപ്പെടും. ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുകയില്ല. കണ്ണുനീരിൻ്റെയും വിലാപത്തിൽ कर क्या रही है औरत? कर लेकिन उस लड़की से कैसे जुड़ा रहा होगा ये? उसका बेटा मानो। അത് കൊച്ചനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഇങ്ങനെ വചനങ്ങളും വായിച്ചു കേട്ട് ഈ ജനലിലൂടെ അപ്പുറത്തെ കനിയായി നോക്കി अच्छा करने को पसंद करता था इसीलिए। ആദ്യ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. बीमारी से मरा हो ഒന്നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ ജീപ്പും ചുരുട്ടിയറിഞ്ഞ ബസ് ടിക്കറ്റും മാലയും കമ്മലും अच्छा इसलिए उसने ये उठा दी थी। तभी इसके पीछे पड़ा। കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ घुंघरू था ये। എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്. അവളോട് പോയൊന്ന് മിണ്ടാനോ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാനോ അവൻ പണ്ടേ അങ്ങനെയാ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അതിന്റെ പറയായിരിക്കും. तो उस लड़की ने क्यों क्यों की सुसाइड? അവനത് സഹിക്കില്ല. മരിച്ചുപോയവരെല്ലാം കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ഒരു അവനിവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ലെന്നും ഈ മരണം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും कि ये औरत भाई सिर मार दे। എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ദൈവം തമ്പുരാന് പോലും ഞാൻ അവന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. वो कौन से उसके बेटे को ले आने आया था? फिर उसे मार देगी शायद वो। मुझे वहीं आ गया वो। क्या उसे भी मार दिया उसने? गाड़ी वहीं खड़ी है ना उसकी। क्या कर रही हो? ओ, उसको दफना तो नहीं रही हो? मुझे लगा उसे मार दिया शायद उसने। गड्ढा खोद रही है। गलती क्या थी वैसे उसकी? कुछ नहीं थी। अरे ये था ना, वो सबको बता देता ना, फिर इसका राज खुल जाता सारा। अच्छा फोन में डाल दिया उसने। उसे मार दिया उसने।
अभी बेहोश है शायद, है ना? तब से बेहोश ही पड़ा है। എണീക്ക് 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 ഫിലിപ്പ് എണീക്ക് നിക്ക് हाँ, अच्छा कहीं भारत ना जाए फिर से। स्मेल आ रही वहाँ बदबू नहीं आ रही हुई क्या? आ तो रही है, तभी तो मुंह ऐसे कर रहा हूँ। मतलब इतने टाइम से उसने उस लाश को रखा हुआ है। उसको भी देख रहा कहीं उठ ना जाए खड़ा। नहीं निकलेगा वो, टाइट हो गया। टाइट बांधा हुआ उसने। इतने सालों तक। नहीं काटा क्या? ഇല്ല വേണം हाँ, ഓക്കെ ഓക്കെ वो औरत गड्ढा गड्ढा खोद रही। ये उसको दफनाने दफनाने की तैयारी कर रही है। इसको मार देती वो अगर ये नहीं आता नहीं। उसी के लिए तो खोद रही है गड्ढा। इन दोनों को पहले उससे बेहोश करना चाहिए ना, उस औरत को, वरना इन्हें मारने आ जाएगी। अगर वो आगे तब तो दिक्कत हो जाएगी नहीं। वहां से चली गई वो। निकाल दिया उसने। आत्मा आ गई वो। भयंकर। ओ दरवाजा बंद हो गया। तेरी ई बहन। बहुत खतरनाक लेडी तो। बहन। ओ बहन का छीन नहीं पा रहा उससे कुछ गाड़ी का। इतनी खतरनाक औरत है। ओ भयंकर। उसका हाथ पे मार दे। तब आगे भी मार दी। इसने क्यों नहीं उठाया कुछ अपने अपने उसके लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए? नहीं उठ गया खड़ा। खड़ा उठ गया। भयंकर। रात को उठ जाता मतलब खड़ा। उसके हाथ मार रही। ओह माय गॉड, ये लड़का कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? कुछ नहीं कर रहा, मार खा रहा आराम से। ये बहुत मर तो नहीं की कहीं? नहीं, सर बहुत जोर से लगा ना उसका। खुले ना दरवाजा। अच्छा खुले। भयंकर, इसे भी मारने की कोशिश कर रहा शायद वो। आत्मा लग गया शायद इसमें। इसे मार रहा शायद वो।
निकल ही नहीं रहे हो। चलो उसके पैर काट रहा है। भयंकर, वो भी नहीं कट रहा। निकल गए दोनों पाँव। चला देगा शायद उन्हें। उड़ गई। आग लगा रहा उनमें। अब चलेगी उसके हाथ में। अब कहीं इसके हाथ में जो उसी ने रुका हुआ था। ये और चाहती थी कि उसका बेटा वहीं रहे। अब डेड बॉडी पे भी लग जाएगी आग। वो आदमी उठ गया होगा। पता नहीं। वो आदमी मर तो नहीं गया होगा। अब वो भी उठ गया। वो तो उसे मारने वाला था। पर उसका नहीं चला पता उस लड़की की मौत कैसे हुई। उसने सुसाइड किया था या किसी ने मारा था उसे? क्यों किया और सुसाइड? सुसाइड क्यों किया अगर किया जो? उसका नहीं चला नहीं पता। चला। और रोने लग गई औरत देखो। ये औरत बहुत खतरनाक थी। मैं इसे मारने वाली थी। और जल रही है उसकी डेड बॉडी। क्या कर रहा है? उसको वहां से बाहर नहीं आ रहा है। उसकी डेड बॉडी जला रहा शायद ना वो। तो भी चल रही है। अच्छा पूरा ही वो जला दिया उसने। पहले उससे लगा था उस लड़की की आत्मा है वो करीब से परेशान। लेकिन एंडी में आए नहीं वो भूत, है ना? आ तो गया था वो, उसे मान नहीं रहा था वो। थोड़ा सा है वो, ऐसा नहीं है ना जैसे दिखाते हैं। मतलब ये रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है शायद ना? रियल लिखा तो था शायद, तो वैसे ही दिखा इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट था लिखा हुआ शायद ना। ഈ മധുസൂദനൻ പോറ്റി ये कौन होगा? കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം ഞാൻ ഈ അടുത്ത അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അവസാനമായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച ഒരു അമ്മയും മകനുമാണ്. ആ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാ നിങ്ങളുടെ ये അടുത്തേക്ക് तो एक फिल्म देखी थी हमने, उसमें नहीं आता ये पूछने किसी को जाता है। अरे इसमें एक ही घर में, ये घर में भी रहता है भूत।
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു, ഞാൻ എത്തിക്കോളാം. वो इसका पिछला पार्ट था शायद. താങ്ക് യു. ये तो रहता उसमें ये लड़का. हाँ वो भी रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है. भूत कालम थे ना वो. पता नहीं क्या था सुना. माँ और बेटे थे इसमें ना. हाँ माँ और बेटे ही बोल रहे इसमें ना. हाँ हाँ. उस फिल्म में भी जाता हो किसी के पास ना. He's getting better. അത് നന്നായി. അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആർക്കും ആരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ പ്രശ്നം. अब जा रहे हैं US. പോയിട്ട് വാ. Thank you. ശങ്കർ സാറിനോട് इसी ने हेल्प की इसकी. कौन करता है हेल्प? उस लड़की का नहीं चला पता उसकी मौत कैसे हुई नहीं. कर दिया बैग पैक इसने. Hey, Dad. Bye. फिर से हम लगे अभी भी है वो तो. कहीं उस लड़की की आत्मा भी तो नहीं होगी वहाँ. पता नहीं. वो वो क्लिप फिर से आ गई. इसने तो वहाँ रख दी थी ना. बेड दबा हुआ ना थोड़ा. कोई बैठा हुआ. अब कौन होगा भयंकर? या तो उस लड़की की आत्मा होगी या फिर उसी की आत्मा हो जिसको भगाया उन्होंने. वो बैठा वहाँ पर भयंकर. उसे लगा सब ठीक हो गया. है कौन ही भयंकर? इससे वो लड़की की आत्मा थी वो. हाँ. तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है. डाइस राई अच्छी फिल्म थी. एक बेहतरीन हॉरर फिल्म बना दी है. तो फिल्म तो बहुत अच्छी है. पर हॉरर सीन वैसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा डरावने हो ना. हाँ मतलब जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं. हाँ उस लेवल के तो नहीं कह सकते हम. लेकिन फिर भी डरावनी है फिल्म. हाँ थोड़ा डरावनी तो है पर ये कि फिल्म की जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग है ना. कहानी इंटरेस्टिंग है. और उसमें जो एक वो रहता है एक सस्पेंस रहता है कि ये किसकी आत्मा है, ये कौन है ये भूत. और फिर उसके बारे में जब वो सर्च करते हैं तो वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आता है ना. बाकी जिस तरह से फिल्म बनाई हुई है वो भी काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग है. और मतलब डरावना तो है पर ये कि मतलब अगर उस तरह से दिखाते ना अगर हॉरर सीन अगर उस तरह के होते हैं ना जो बहुत मतलब वैसे होते हैं बहुत स्केरी होते हैं. जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना. जैसे कॉन्जरिंग हो गया या बाकी अदर मूवीज़ भी हैं तो उस तरह के हॉरर सीन्स भी अगर इसमें होते हैं जिसमें भूत को ज़्यादा दिखाया जाता है ना. भूत ज़्यादा डरा रहा होता है. नहीं अगर उस वे में दिखाते अगर जो तब ज़्यादा डरावना लगता है. ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म को देखने में. जैसे बड़े कॉन्जरिंग में भी
वो भी रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवीज होती है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं। हाँ, पर उसमें लेकिन उसमें दिखाते हैं ना उस तरह से, उसमें जो सीन्स होते हैं, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया होता है और भूत को जिस तरह से दिखाया जाता है, हाँ, तो वो बहुत डरावना होता है। तो उस लेवल का नहीं था इसमें दिखा रहे कुछ भी। इसमें भले ही डरावना लग तो रहा था, पर उतना नहीं लग रहा था। सीन्स को अगर और उसमें दिखाते ना हॉरर वे में, और ज़्यादा उसमें थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, जिससे कि और वो सीन और ज़्यादा डरावना लगे, भूत और ज़्यादा डराए इस तरह से, या और ज़्यादा वो सीन मतलब बहुत ज़्यादा वो लगे ना, हॉरर इस तरह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा डरावना लगे, उस तरह का नहीं था। पर ये की फिल्म काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और कहानी फिल्म की अच्छी है। बस ये कि वो सस्पेंस समझ नहीं आया जो हम सोच ही रहे थे कि उस लड़की की डेथ, मतलब उसने सुसाइड क्यों किया, उस चीज़ का पता नहीं चला फिल्म में। और उसने सुसाइड ही किया था या उसकी डेथ हुई थी, ये भी सस्पेंस ही है। पर अगर उसने सुसाइड किया था तो वो ये कि मालूम नहीं चला ना फिल्म में कि क्यों किया उसने सुसाइड, उस सस्पेंस का पता नहीं चला। और जिस तरह से पूरी फिल्म में, मतलब इस शायद फर्स्ट हाफ तक वो उसे यही लग रहा था कि ये उस लड़की की आत्मा है। हाँ, तो फर्स्ट हाफ में एंडिंग में क्लियर हो गया था कि आत्मा किसी और की है। नहीं, एंडिंग में तो नहीं, पर जब वो आदमी आया वहाँ इंटरवल टाइम पे हो गया था वो, हाँ रिवील। हाँ, जब वो आदमी वहाँ आया ना, फिर उसके बाद तब उन्हें पता चला शायद ना। नहीं, जब उसके भाई की वो हुई, हाँ, जब उसका भाई गिरा छत से, जब उसने उस भूत ने उसके भाई को गिराया, और फिर जब उसने रात में देखा तो उसने एक आदमी की आत्मा को देखा वहाँ, तो इंटरवल के उसमें दिखा हो। हाँ, तो तब उसे पता चला ना कि ये उस लड़की की आत्मा नहीं है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में दिख गया था। और फिर तो वहाँ से फिल्म ने एक, मतलब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था, और फिल्म और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो गई थी ना। लेकिन एंडिंग में थोड़ा सा वैसा हुआ, आसानी से ख़त्म हो गई फिल्म, ज़्यादा कुछ वैसा हुआ नहीं जैसे होता है ना हॉरर फिल्मों में, खासकर हम हॉलीवुड से कंपेयर करें जो ज़्यादा मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है भूत को भगाने के लिए, वैसे कुछ था नहीं, आसानी से चला गया था। तो थोड़ा सा सिंपल लगा वहाँ पर ये भी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है शायद, मूवी लिखा भी जा रहा है, तो इसलिए उस तरह से ज़्यादा दिखा नहीं रखा ना, सब रियलिस्टिक वे में दिखा रखा है। लास्ट में एक आदमी आता है उस कॉन्ट्रैक्टर के पास, तब यही वही आदमी था जो एक फिल्म देखी थी हमने ना, शायद भूत कालम था उसका नाम, पता नहीं क्या था, माँ और बेटे थे उसमें ना। तो क्योंकि मुझे याद आ गया था ना जब मैंने उस आदमी को देखा, क्योंकि वही था उस फिल्म में, पर वो फिल्म भी नहीं थी कोई डरावनी। हाँ, उसमें लास्ट में था थोड़ा सा, बस ये था कि कहानी अच्छी थी उसकी, बस ऐसे वो डरावनी नहीं थी ज़्यादा। फिर जब जिस तरह से बताता है कि माँ बेटे उस घर को बेच नहीं पा रहे हैं, ना ही रेंट पे दे पा रहे हैं, तो इसकी हेल्प लेता है वो, क्योंकि उस फिल्म में याद है ना मुझे, इस आदमी से मिलने आता है। तो मिली हुई है शायद, दोनों की कहानी मिली हुई है, वो भी शायद सच्ची घटना पे थी, ये भी सच्ची घटना पे। तो बाकी फिल्म ओवरऑल अच्छी है, एक्टिंग कमाल की है प्रणव मोहनलाल ने, एक्टिंग मतलब काफ़ी अच्छी है उनकी ना। मोहनलाल के बेटे हैं शायद, हाँ उन्हीं के बेटे हैं। तो मतलब अच्छी फिल्म है, मतलब देखने लायक है। वैसे मेन लीड रोल में तो मतलब वही है प्रणव मोहनलाल इसमें, और जो ज़्यादातर दिखाए जाते हैं गिबिन गोपीनाथ, ये तो दिखे जाते हैं फिल्म में। हाँ, वही दो थे जो मेन कैरेक्टर, बाकी उसके भाई का रोल था थोड़ा, उस लड़की के भाई का रोल, तो उनका भी छोटा सा रोल था, पर ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। और लास्ट में जो फिल्म की एंडिंग में हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया,
पर उस लड़की की आत्मा भी उसी घर में थी। तो वहाँ पर एक नया शुरू होता है, नया सस्पेंस। हाँ, तो मतलब फिल्म शायद अभी खत्म नहीं हुई पूरी फिर। इसका शायद सेकंड पार्ट भी बनेगा। क्योंकि अभी वो भी सस्पेंस है ना कि उसकी मौत कैसे हुई, उसने क्यों किया सुसाइड। अगर इसका सेकंड पार्ट बनता है तो तब पता हो चलेगा। सकता है शायद इसके सेकंड पार्ट में उसकी आगे की कहानी दिखाए हो ना, या फिर यहीं पर ख़त्म कर दें ये मूवी, ये भी हो सकता है। ओवरऑल फिर फिल्म अच्छी है, मजा आया फिल्म देखने में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।